न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं स्ट्रैप ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो। मोबाइल हॉस्पिटल, वेलनेस कोच साहिद, সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, निशुरा मार्बल, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग, स्काई वर्ल्ड, जस्ट ज्वेलरी, डिस्ट्रिक्ट बिगेस्ट फिटनेस स्टोर। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी ने रूपनारायणपुर फाड़ी में एक बैरक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही यहां एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सीपी ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस बारे में पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी ने कहा कि रूपनारायणपुर फाड़ी में पुलिस बैरक का उद्घाटन किया गया, साथ ही एक रक्तदान शिविर किया गया। उन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना चल रहा है और होली भी आने वाला है। समाज के हर वर्ग को शुभकामनाएं दी, आशा व्यक्त की कि आने वाले दिनों में त्योहारों को अच्छी तरह से मनाया जाएगा। আজকের এই ছোট অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে উপস্থিত ডিসিপি ওয়েস্ট সন্দীপ কররা, এখানে উপস্থিত আছেন আমার সকল সহকর্মীবৃন্দ, উপস্থিত এলাকার সুধীবৃন্দ, মিডিয়ার বন্ধুগণ, সকলকে হার্দিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজকে এই যে সুন্দর এখানে এলসি ব্যারাক এবং আইসি কোয়ার্টারের যে উদ্বোধন হলো, আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি আইসি সারানপুর রূপনারায়ণ ফাড়ির ইনচার্জকে। দেখুন, এখানে জাগ্রত করার কিছু নেই, সবার জানে কি রোজা চলছে রমজান আর হোলি পড়ছে। হোলি তো আপনার সবার জানে একটু খুব মানে আনন্দময় ফেস্টিভ্যাল, সব রং খেলে না, সব নিয়ে খেলে। তো আমাকে কোনো আশঙ্কা নেই কি কোনো সমস্যা হবে, কিন্তু আমার তরফ থেকে যে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হয় সেন্সিটিভ জায়গা যেটা আছে ওটা সব আমি আইডেন্টিফাই অলরেডি করলাম। আমার প্ল্যানিং যেটা আছে খুবভাবে করলাম, আমার ডিপ্লয়মেন্ট যেটা থাকবে ওটা থাকবে। আর আমি জানি কি হোলির সময় ওয়েস্ট বেঙ্গলে হোক या আমার এলাকায় হোক কোনো দিন কোনো সমস্যা হয়নি আর আশা করি কি এবারও হবে না। আমি অনুরোধ করছি কি সব লোককে আনন্দময় সেলিব্রেট করে আর হোলি আর রমজান কোনো ভালো করে মানুষকে স্যার কি বলবেন, কি বার্তা? মানুষকে এটাই তো বলছি, তো আপনার ফেস্টিভ্যাল আরামসে করো, আপনার জন্য পুলিশ আছে, কোনো সমস্যা নেই और কোনো সমস্যা হবে না। कुल्टी के नियामतपुर बाज़ार में जूते और मोबाइल की दुकान में आग लगी थी। आसनसोल से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने में काफ़ी देर हुई थी, जिस वजह से आग पर काबू पाने में काफ़ी देर हुई। इसके बाद CPM द्वारा नियामतपुर में संवाददाता सम्मेलन किया गया। यहां पर वामपंथी नेता देवानंद प्रसाद ने कहा कि उनकी मांग है कि नियामतपुर इलाके में एक फायर ब्रिगेड केंद्र बनाया जाए, ताकि इस क्षेत्र में अगर कहीं भी अग्निकांड हो तो तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच सके। इससे लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। उन्होंने कहा कि कल नियामतपुर बाज़ार में यहां के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष की दुकान में आग लगे, लेकिन आसनसोल बाज़ार में फायर ब्रिगेड की गाड़ी नियामतपुर पहुंचने में 1 घंटे से भी ज़्यादा समय लगा, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ के व्यापारियों में आतंक फैल गया। उन्होंने कहा कि आसनसोल से नियामतपुर, कुल्टी, बड़ाकर आदि क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने में काफ़ी देर होती है, इसलिए अगर आसनसोल के फायर ब्रिगेड ऑफिस के भरोसे यहाँ की जनता बैठी रही तो उन्हें इस तरह के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। কিসের দোকান ছিল? আমার জুতো দোকান আর মোবাইল দোকান দুটোই আছে। যে আগুন লেগেছে কোন দোকানে? আগুন অ্যাকচুয়ালি আমার পিছনে গোডাউন আছে আর আগে আমাদের বাড়ি ছিল। গোডাউন তো জুতোর দোকানে নাকি? হ্যাঁ, জুতো দোকান। কি করে আগুন লাগলো? সেটা তো এখন কেউ বোঝা যাচ্ছে না, আমার তো পুরো নতুন ওয়ারিং আছে, তো সেই জন্য আমি শর্ট সার্কিট বলতে পারছি না। কিন্তু আমার পাশে একটা জঙ্গল আছে, ওখানে আমাদের পাশে যেটা লোকরা আছে ওরা ডেলি ওখানে আগুন লাগায়, আমরা অনেকবার বারণও করেছি। তো আমার মনে হচ্ছে কালকে ওরা আগুন লাগিয়েছিল, আজকে ওরা কুড়া জ্বালাতে চালু করেছে, তো ওখান থেকেই আগ লেগেছে। আমাদের বন্ধু দুরিন্দর সিং আর সেক্রেটারি নেওয়াতপুর মার্চেন্ট চেম্বার, নেওয়াতপুর চেম্বার অফ কমার্সের ওখানে এখন 1 ঘন্টা আগে দেখে গেছি পিছনে গোদামে একটা আগুন ধরেছে। এই আগুনটা কী কারণে ধরেছে এখন জানা নেই, কিন্তু পিছনে 2-4টা বাড়ি আছে, ওখানে বহুত নোংরা ফেলা হয়। এবারে জানি না ওখানের থেকে ধরেছে না শর্ট সার্কিট থেকে ধরেছে, সেটা তো তদন্ত করেই বুঝতে পারবো আমরা। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি আছে নিয়ামতপুর, কুল্টি এই অঞ্চলে একটা ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন স্থাপনা করতে হবে। আপনারা জানেন বর্তমানে যেখানে আসানসোলের বাজারের মধ্যে ফায়ার ব্রিগেডের স্টেশন আছে, সেই স্টেশন থেকে এই চত্বর মানে নিয়ামতপুর, কুল্টি, বরাকর, ডিসেরগড়, চিনাকুড়ি, সাকতড়িয়া এই গোটা অঞ্চল কভার করা যায় না। এটা একটা অবাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে সরকার চলছে।
এবং গতকাল নিয়ামতপুরে চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতির দোকানে আগুন লাগে, সেখানে গাড়ি আসতে সোয়া ঘন্টার বেশি সময় নেয়। এই সময়কালে যথেষ্ট লোকসান হয়, তার সাথে সাথে এলাকায় সাধারণ মানুষ ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়, কিন্তু সরকার এবং শাসক দল কোনো কর্ণপাত করছে না। তাই আমরা জনসাধারণের কাছে গেছি, গণস্বাক্ষর অভিযান চালিয়েছি। এই অভিযান চালিয়ে একটি জ্ঞাপন আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী সুজিত বোস এবং আমাদের পশ্চিম বর্ধমানের ডিএম ওনাদেরকে জ্ঞাপনটা দেব এবং এনাদের কাছে আমরা দাবি করছি যে অবিলম্বে আপনারা নিয়ামতপুর অঞ্চলে একটি ফায়ার ব্রিগেড স্টেশনের ব্যবস্থা করুন। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शन। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, GT रोड, आसनसोल। जूते के साथ हम चले स्कूल, यही है बात। मुंह में मुस्कान, दिल में तूफान, सब पैरों में रहे सिर्फ स्ट्रैप ऑन। क्लास की पढ़ाई हो, खेल का मैदान, सब पर जाता है सिर्फ स्ट्रैप ऑन। स्कूल शूज मतलब स्ट्रैप ऑन ही सही, अच्छा टिकाऊ और महंगा नहीं। नर्सरी हो या 12 में हो, स्ट्रैप ऑन ही चाहिए सब पर हो। स्ट्रैप ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो। अगर आपको चाहिए अत्याधुनिक साइकिल या फिर जिम के उपकरण, तो चले आइए सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राई, पश्चिम बर्धमान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेली डंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक्स सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेड में एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई, चेली डंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। शरीर के बढ़ते वजन और मोटापे से हो परेशान, बहुत सारे नुस्खे और शॉर्टकट अपनाकर हो गए हो परेशान, तो अब टेंशन को करो बाय। आपके लिए वेलनेस कोच शाही फिटनेस एंड लाइफस्टाइल कोच लेकर आए हैं वर्कआउट क्लासेस। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज, जुम्बा, योगा कराई जाती है टेस्टेड एंड प्रूवन सिस्टम के साथ, जिससे आप अपना वेट कम कर सकते हो जाता है और भी हेल्दी एंड फिट बॉडी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें 9932862765 और दिए गए लिंक पर क्लिक करके 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। अगर आप रहना चाहते हैं फिट, तो ले आइए पश्चिम बर्धमान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, GT रोड, आसनसोल।
राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष पर आरोप लगाया था कि विधानसभा सत्र के दौरान उनके चीखने चिल्लाने की वजह से विधानसभा का कामकाज ठीक से नहीं हो पा रहा है, विभिन्न योजनाओं को पेश नहीं किया जा रहा है। बुधवार को आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल ने ममता बनर्जी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं पर अत्याचार की बात कहने, राज्य के विभिन्न इलाकों में पूजा बंद करने, मंदिरों को तोड़ने, विभिन्न सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार का विरोध, मंत्री सहित विभिन्न नेताओं के भ्रष्टाचार में शामिल होने पर आवाज़ उठाने को अगर वह चिल्लाना कहती है और यह कहा जाता है कि विपक्ष विधानसभा चलने नहीं दे रहा है, तो मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र का सीधा प्रसारण करवाए। इससे राज्य की जनता को समझ में आ जाएगा कि भाजपा विधायक विधानसभा में क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से विधानसभा के अंदर राज्य की विभिन्न घटनाओं का विरोध किया जा रहा है। দেখুন আজকে পশ্চিমবঙ্গ অ্যাসেম্বলিতে আজ বিরোধী মানে একমাত্র বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টির এমএলএরা যদি বাংলার মানুষের কষ্ট, তাদের ইস্যু, তাদের অত্যাচার নিয়ে যদি কথা বলি, তাহলে হয়ে যাচ্ছে যে আমরা নাকি হাউস ডিস্টার্ব করছি। মানে আপনারা কি ভাবেন মুখ্যমন্ত্রী যে আমরা আপনার ইয়েস ম্যান হয়ে থাকবো? আজকে মহিলাদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে আপনি সেটা নিয়ে কোনো কথা বলতে দেবেন না। আজকে সরস্বতী পুজো, দুর্গা পুজো, কালী পুজো, মন্দির, শীতলা মন্দির ভেঙে ফেলা হচ্ছে, আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আপনি মনে করবেন না সেটা নিয়ে কোনো কথা বলা যাবে না। আপনার নেতা মন্ত্রীরা চুরি করছে, আজকে হেন ডিপার্টমেন্ট আপনার নেই যেখানে চুরি হয়নি, দুর্নীতি হয়নি, সেটা নিয়ে কথা বলতে গেলে আপনি কথা বলতে দেবেন না। আপনার মনে হচ্ছে আমরা ডিস্টার্ব করছি। আপনার যদি সৎ সাহস থাকে মুখ্যমন্ত্রী, আপনি লাইভ টেলিকাস্ট করুন। আপনার সৎ সাহস যদি থাকে মমতা ব্যানার্জি, আপনি প্রসিডিংস যেরকম প্রত্যেকটা ভারতবর্ষের রাজ্যে হয় আপনি লাইভ টেলিকাস্ট করুন। বাংলার মানুষ দেখুক আমরা কি কাজ করছি, আমরা কি প্রতিবাদ করি, কি করি। কেউ তো কিছু জানতে পারছে না, আর আমরা প্রতিবাদ করলে আপনারা মনে হচ্ছে যে আমরা চিৎকার করছি। আমাদের যদি কথা বলতে না দেন, আমাদের যদি মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেন, আমাদের যদি সাসপেন্ড করে দেন, আমাদের যদি মার্শালকে দিয়ে চ্যাংদোলা করে বাইরে করে দেন, আমরা প্রতিবাদ করব। কারণ আমি এই জায়গাটা পেয়েছি আমার আসানসোল দক্ষিণের মানুষের জন্য। আমরা এই জায়গাটা পেয়েছি কারণ বাংলার মানুষ আমাদের জিতিয়ে এনেছে, আপনি দেননি। তাই সৎ সাহস তাকে চ্যালেঞ্জ করছি আপনাকে মুখ্যমন্ত্রী, আপনার যদি সাহস থাকে আপনি লাইভ টেলিকাস্ট করে দেখান, আমরা কোনো রকম কোনো বাধা বিপত্তি করব না। हाई मास्ट लाइट का कार्य करने के दौरान बुधवार दोपहर को बुदबुद के सुखदाल मोड़ के पास बिजली का करंट लगने से एक ठेकाकर्मी की मौत हो गई। मृतक का नाम सोमनाथ घोष है, वह गलसी निवासी था। स्थानीय सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक सोमनाथ बुदबुद ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए हाई मस्ट लाइट की मरम्मत के लिए हाई मस्ट लाइट के खंभे पर चढ़ा था। पता चला कि उस खंभे पर 2 ट्रांसफार्मर के कनेक्शन थे। एक कनेक्शन को बंद करने के बावजूद दूसरे कनेक्शन को बंद नहीं किया गया। इस कारण बिजली के तार के संपर्क में आने से सोमनाथ को करंट लगा और वह नीचे गिर गया। इससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी। बुदबुद थाने के पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतक एक ठेकेदार संस्था के अधीन काम करता था। लंबे समय से आसनसोल के होलसेल मार्केट को काली पहाड़ी में स्थानांतरित करने की बात कही जा रही है। अब इसका इंतज़ार खत्म होने जा रहा है। आज इसे लेकर जिला शासक एस पुन्नावलम की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक, MMIC गुरदास चटर्जी सहित जिला प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित थे। वसीमुल हक ने कहा कि आगामी 18 तारीख को सर्किट हाउस में फ्रूट मार्केट को काली पहाड़ी में स्थानांतरित करने के लिए लॉटरी होगी। 18 को 30 लोगों को लॉटरी होगी और उनको 20 अप्रैल तक काली पहाड़ी में स्थानांतरित किया जाएगा। गुरदास चटर्जी ने कहा इसके बाद वेजिटेबल मार्केट और फिश मार्केट को भी आसनसोल बाज़ार इलाके से काली पहाड़ी में स्थानांतरित किया जाएगा। आसनसोल बाज़ार इलाके में कोई भी होलसेल मार्केट को रहने नहीं दिया जाएगा, सबको काली पहाड़ी में स्थानांतरित किया जाएगा। आसनसोल में जो फ्रूट्स होलसेल है इसको हम लोग काली पहाड़ी में शिफ्ट करने का कर रहे हैं। 33 स्टॉल है, वो हम लोग आज इसी का मीटिंग था, तो सभी कुछ फाइनल हो गया है। लॉटरी होगा, उन लोग को लॉटरी करके माध्यम से उन लोग को स्टॉल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा
और अलॉटमेंट के 50 दिन के अंदर में पूरा हम लोग क्लियर कर देंगे। और जीटी रोड के साइड में कोई फुटपाथ पे होलसेलर फ्रूट्स दुकान नहीं होगा। तो ये कब आप लोग शिफ्ट करेंगे? और नोटिस हो गया, आज मीटिंग हुई है फाइनल। মঙ্গলবারে লটারি হবে, সামনে মঙ্গলবার 18 তারিখ। যার যা পজিশন চাবি দিতে হবে। 20 তারিখ, এপ্রিলের 20 তারিখের মধ্যে পুরো মার্কেট ওখান দিয়ে চলে যেতে হবে। 33টা জন এখন চিহ্নিত হয়েছে। আমরা আরও যদি কেউ থাকে তাদেরকে চিহ্নিতকরণ করে ওখানে দেওয়া হবে জায়গা। কিন্তু জিটি রোডের ধারে আর ফ্রুট মানে ফল হোলসেল বেচা যাবে না। এরপরে আমরা সবজি মার্কেটে হাত দেবো এবং ফিশের মার্কেটও আদৌ ভবিষ্যতে ওইদিকে নিয়ে যাবো। क्राइम ब्रांच पुलिस की तत्परता से आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत कल्ला बाईपास मोड़ पर एक मारुति से भारी मात्रा में फर्जी लॉटरी टिकट जब्त किए गए। वहीं अगर यह लॉटरी असली होती तो बाज़ार में इसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास होती। इस घटना में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कहां से यह लॉटरी की टिकट ले जा रहे थे, इस बात की जांच क्राइम ब्रांच के अधिकारी द्वारा की जा रही है। आरोप है कि आसनसोल में फर्जी लॉटरी का धंधा फल फूल रहा है। सबसे आश्चर्य की बात है कि राज्य सरकार के टैक्स को चूना लगाकर यह व्यापार चल रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को खबर मिली थी कि एक मारुति गाड़ी में झारखंड के तरफ फर्जी लॉटरी टिकट ले जाए जा रहे हैं। इसके बाद उन टिकटों को शिल्पांचल के विभिन्न इलाकों में पहुंचाया जाएगा। खबर पाते ही क्राइम ब्रांच के अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखनी शुरू हुई। आसनसोल उत्तर थाना के कल्ला बाईपास पर मारुति गाड़ी को रोका गया। तलाशी के दौरान फर्जी लॉटरी के टिकट बरामद हुए। इस घटना से चालक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। इस 9 वर्ष में अगर किफ़ायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंचर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে।
आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। बरसात का मौसम आते ही डेंगू लगभग महामारी के रूप ले लेती है। इसकी रोकथाम के लिए पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन अभी से तत्पर हो चुका है। जिला शासक एस पुन्नावलम की अध्यक्षता में आसनसोल दुर्गापुर में जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनके प्रतिनिधियों को साथ लेकर बैठक की गई। इस बैठक में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, DVC-ISP, DPL जैसे राष्ट्रीय संसाधन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। यहां पर आगामी बारिश के मौसम में डेंगू की रोकथाम को लेकर इन संस्थानों के प्रतिनिधियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बारे में DM ने बताया कि बारिश के मौसम में डेंगू विकराल रूप धारण ना करे, इसलिए ड्राई सीजन मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। स्वास्थ्य विभाग, रूरल अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आदि से जिला प्रशासन को कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसके बारे में आज विस्तार से समझने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था। अपने अपने क्षेत्र में डेंगू के रोकथाम के लिए जो ज़रूरी कम से कम, जैसे कहीं पर भी जल जमाव ना होने दे, साफ सफाई रखें। इस संस्थानों के क्वार्टरों और कार्यालयों में साफ सफाई पर ध्यान दें। আমরা ডেঙ্গু নিয়ে আমরা আজকে মূলত আমাদের এখানে PSUs আছে, পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং, যেমন ইসকো আছে, DSP আছে, ECL আছে, DPL আছে, DVC আছে, এদের নিয়ে আমরা একটা মিটিং করা হয়েছে। অলরেডি আমাদের ড্রাই সিজন ম্যানেজমেন্ট, যেটা ডেঙ্গুকে যদি ম্যানেজ করতে গেলে এখন থেকে ড্রাই সিজনে এই গার্বেজগুলো ঠিকঠাক যদি কালেক্ট না করি অথবা ড্রেনগুলোকে ঠিকঠাক পরিষ্কার না করি, ওটা আমাদেরকে ওই এফেক্টটা আমরা ওই বর্ষা শুরু হয়ে গেলে তখন পাই। এই জন্য আমাদের আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, আরবান ডেভেলপমেন্ট এবং মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট এবং PNRD ডিপার্টমেন্ট এবং হেলথ ডিপার্টমেন্ট, তিনটে দপ্তরই আমাদেরকে ড্রাই সিজনে কী কী কাজ করতে হবে এটা নিয়ে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে। এটারই আজকে মিটিং যেটা হলো ওটা তারই একটা মতলব ইনস্ট্রাকশনকে ফলো করার একটা কাজ। ওনাদেরকে আজকে নির্দেশ দেওয়া হলো, প্রথমে যত অর্গানাইজেশন আছে, যেহেতু এখানে আমাদের আসানসোল এবং দুর্গাপুরে একটা অংশ আছে, ওটা পুরোটাই ওদের টাউনশিপও আছে, ওদের অফিসগুলোও আছে, যেখানে আমাদের কর্পোরেশনও ওখানে গিয়ে কাজ করেন না, যেমন রেলওয়েও আছে। ওনারা নিজেরাই কনজারভেন্সি করেন, সবগুলো ওনাদের নিজের অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। সো ওনাদেরকে মূলত এটাই বলা হলো, প্রথমে নিজের অফিসেসগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন, প্রচুর ওনাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক আছে। আর সেকেন্ড হচ্ছে ওনাদের যে টাউনশিপগুলো আছে, টাউনশিপগুলোতেও ভালো করে যারা কনজারভেন্সি কাজ করছে ওদেরকে এটা ট্রেনিং দিতে হবে, ডেঙ্গুকে নিয়ে কি কি পয়েন্টগুলো দেখতে হবে। যেমন কোনো জায়গায় ওয়াটার দাঁড়িয়ে থাকবে না, জল দাঁড়িয়ে থাকবে না, আর ওয়াটার ট্যাঙ্ক, ফ্লাওয়ার পট এরকম জল দাঁড়িয়ে থাকার মতো রাখা যাবে না, এগুলো বলা হয়েছে ওদেরকে। আর আরও একটা কথা ওদেরকে বলা হয়েছে, ওদের যতগুলো টাউনশিপ আর এমপ্লয়িজ কোয়ার্টার আছে, অফিসার্স কোয়ার্টার, ওদের অ্যাসোসিয়েশনকে নিয়ে একটা IEC ক্যাম্পেইন করতে বলা হয়েছে। যেহেতু এখানে বাকি এরিয়াতে ওয়ার্ডগুলোতে আমরা IEC অ্যাক্টিভিটি করি, কিন্তু ওদের টাউনশিপের ভিতরে আমরা নর্মালি গিয়ে করা হয় না, ওটা মিস হয়ে যায়।
ওই জন্য ওদেরকেও দায়িত্ব দেওয়া হলো আপনাদের এরিয়াতে যারা অফিসাররা থাকেন, এমপ্লয়িরা থাকেন, আপনার টাউনশিপে যারা যারা থাকেন ওদেরকে নিয়ে একটা আইইসি অ্যাক্টিভিটি করতে হবে, এটা বলা হয়েছে। ওনারা পজিটিভলি অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন এই কাজগুলো করবেন। আমরা মাসে মাসে এদের এটা নিয়ে আমরা রিভিউ করব ওনাদের অ্যাক্টিভিটিগুলোকে নিয়ে। रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्याम सेल कारखाने के सामने कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि प्रबंधन द्वारा उन्हें जामुड़िया के कारखाने में भेजा जा रहा है, जिसे वह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्रमिक शब्बीर शेख ने कहा कि यहाँ पर 212 श्रमिक है, इनमें से बहुत से श्रमिकों को जामुड़िया के कारखाने में स्थानांतरित किया जा रहा है। यह सभी अस्थायी श्रमिक है और यह जामुड़िया नहीं जाना चाहते। उन्हें कारखाने के अंदर जाने में रोका गया और इसी को लेकर श्रमिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहला कारखाना प्रबंधन के साथ श्रमिक संगठन की बैठक हुई थी, जिसमें INTTUC नेता ज्योति सिंह के अलावा अन्य नेता उपस्थित थे। सबकी मौजूदगी में यह तय हुआ था कि जो पुराने अस्थायी श्रमिक हैं उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद अगर जगह बचती है तो बाहर से श्रमिकों को लाया जाएगा। लेकिन प्रबंधन यह नहीं मान रहा है और यूनियन के साथ बैठक में जो फैसला हुआ था उससे उलट यहाँ के अस्थायी श्रमिकों को जामुड़िया भेजने की कोशिश की जा रही है। आरोप लगाया कि यहाँ पर कारखाने के एक अधिकारी उज्जवल चटर्जी यह सारी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं, जिससे श्रमिक बेहद नाराज है। इस संबंध में प्रबंधन की ओर से कोई जवाब फिलहाल नहीं आया है। আমাদের আজকে দাবি বলে নয়, আমাদের শনিবার 8 তারিখ থেকে আমাদের এই আন্দোলন চলছে। আমরা গেটে আসছি, আমাদেরকে কাজ করতে দিচ্ছে না, ঢুকতে দিচ্ছে না। নতুন বেশ কিছুদিন ধরে কন্ডাক্টরকে রেখে ওদেরকে যখন বললাম, ওদের কাউকে কিছু আমরা বলি নাই। আমরা ম্যানেজারের সঙ্গে ডিসিশন করে যে আমাদেরকে 49টা টিফিন দিলে আমরা যত পুরনো জন আছি আমাদের সবারই হাজিরি হয়ে যাবে, তারপর তুমি যাকে দেবে দাওগা। কিন্তু ম্যানেজার ডিসিশন করলেন, জ্যোতি সিং INTTUC ইউনাইটেড ব্লক প্রেসিডেন্ট ছিলেন, ব্লক প্রেসিডেন্ট সাবিত দাও ছিলেন। কথাবার্তা হলো, ইউনিয়ন আর ম্যানেজার ডিসিশন এইটাই হলো যে প্রথমে যারা পুরনো লোক তারা কাজ পাবে, তারপর কেউ পাবে। কিন্তু যারা এভাবে করছে, যারা হুমকি দিয়ে ধমকি দিয়ে ডাংলিয়ে বসে আছে গেটে যে মারবো ধরবো কাউকে ঢুকতে দেব না, এইভাবে করেছে, আমরা এটা মানছি না, মানবো না। আমরা কতজন, ওরা 3 জন মিলে এমনি করছে, ওদেরকে কোনো প্রশাসন বলে নেই, কোনো কিছু নেই। এই জিনিসগুলো যদি আমরা করতাম তা আমাদেরকে ছাড়তো না। বলো ছাড়তো কেউ? কেউ ছাড়তো না। এবারে এত লোক যে কাজ করছে সবাই মিলে বলে দেয়, জিনিসটাকে আমি আবিষ্কার করি, সবাই মিলে বলে দেয়। সবাই মিলে বললে তো আপনারা বুঝবেন না, সবাই মিলে বলে জিনিসটাকে আমি আবিষ্কার করি। এবারে জ্যোতি সিং আমাদেরকে বললেন, সাবিত দাও বললেন যে তোমাদের 49টা টিফিন যে আছে ভাগ ভাগ করা হয়েছে 5টা ইয়ার্ডে, পুরনো ইয়ার্ড। আমাদের প্রত্যেকটা ছেলে PFSI আছে, প্রত্যেকটা ছেলেকে আপনি জিজ্ঞেস করুন, সবারই PFSI আছে। এখন বলছে যে না, তোমরা ম্যানেজার উজ্জ্বল চ্যাটার্জি, যত মেন খেলোয়াড় উজ্জ্বল চ্যাটার্জিকে আমরা অনুরোধ করে বলছি আপনারা একদম ইমিডিয়েটলি আপনারা অ্যাকশন নেবেন এই উজ্জ্বল চ্যাটার্জির ওপরে। যত খেলা উজ্জ্বল চ্যাটার্জি খেলছে, এ ভাবছে যে লোকাল কোনো কন্ডাক্টরকে দিয়ে পরে লোকালকে দিয়ে ঝগড়া লাগিয়ে দেব, আমরা মজা মারবো। কিন্তু আমরা যে হোক কারোর সঙ্গে আমরা ব্যবহার খারাপ করি নাই। আপনি জিজ্ঞেস করতে পারবেন, বলতেও পারবেন, দেখতেও পারবেন, আপনি ক্যামেরাতেও চেক করতে পারবেন। আমরা কারোর সঙ্গে কিছু ঝগড়াও করি নাই। আমরা এটাই চাইছি, আমাদের এইটাই দাবি যে আমাদের 49 টিফিন দিয়ে দেখ, 49টা টিফিন দিয়ে দেখ, আমরা কাজ করতে রাজি। আর আমাদেরকে যেমনি গেটে যেমনি আমরা ঢুকতে পারি, যেমনি আমাদের কেউ না আটকায়, আমাদের কাজে কোনো ফল্ট না হয়, এইটা আমাদের দাবি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं जस्ट ज्वेलरी, स्काई वर्ल्ड, डिस्ट्रिक्ट बिगेस्ट फिटनेस स्टोर, स्ट्रैप ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो, मोबाइल हॉस्पिटल, वेलनेस कोच शाही, সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, BN घाटी, विघ्नेश्वरा मार्बल, मोहन द फैमिली स्टोर, ट्रेड एंड ट्राई, श्री बालाजी फैशन, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग,